Hello viewers and all you viewers, welcome back to my channel. Now in this video, we discuss about the most important authors which ask again and again about their setting of the novel, then the question on the character and the work, main theme, sometimes the setting also asks. So according to that point of view, let's learn with me. First is that A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan, born in 1929 and died in 1993. What is the full name of the A.K. Ramanujan? Attipati Krishnaswamy Ramanujan is the first complete full name of him. He was born in Mysore, Karnataka, India, 16 March. So he is born in Tamil Brahmin family. Father was a professor and astrologer, and he know the language. He can read and write the Tamil and Kannada. He took education BA English literature from the University of Mysore. So when we talk about him, theoretically linguist from the Deccan College, also Pune PhD in linguistics. So he started his career as in English in India, and now as our exam point of view, what kind of the questions are there? So the awards are asked. That is the Padma Shri Award he got in 1976. उन्हें 1976 में पद्म श्री अवार्ड भी मिला है, मैक आर्थर फेलोशिप अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड पोस्टमोस्टली उन्हें मिला है 1995 में. So what is the contribution of A.K. Ramanujan? A.K. Ramanujan पे सेट एग्जाम में, स्पेशली महाराष्ट्र सेट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो उनके पोएट्री पे क्वेश्चन बनता है. तो लेट्स सी अबाउट हिज मेजर वर्क. सो उनका पोएट्री कलेक्शन में मेजर वर्क हम देखेंगे तो स्ट्राइडर जो 1966 में आया था, इसकी क्रोनोलॉजी एक बार पूछी गई है. सो कीप इन माइंड द क्रोनोलॉजी ऑफ हिज वर्क. द स्ट्राइडर 1966, रिलेशन इन 1971, सेकेंड साइट इन 1986 एंड द ब्लैक हेन इन 1995, पोस्ट मोस्टली आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर. Then translation, he did the translation, the interior landscape, love poems from the classical Tamil anthology का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है. Speaking of Shiva 1973 में. These are the translation work of the A.K. Ramanujan. फिर आता है उनका Hymn for the Drowning, poem for Vishnu 1981 में. Folk tales from India he translated. विच इज द नोटेबल वर्क, और जिसपे हमेशा क्वेश्चन बनता है वो है रिवर. रिवर के लाइंस पूछे जाते हैं, रिवर्स के थीम को एक मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा जाता है. तो कॉन्ट्रास्ट द इनडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड द न्यू पोएट टू द ह्यूमन सफरिंग ड्यूरिंग द फ्लड इन द रिवर वैकई. इसका सब डिस्क्रिप्शन हमें इस रिवर पोएम में देखने को मिलता है. So the river has a water enough to be poetic about only once a year. This kind of the lines we can found in the poetry. Looking for the cousin on a swing, it is also a beautiful and the famous work by the A.K. Ramanujan. Explore evolving the sexuality from the childhood innocent to the adult consciousness. He wrote Consciousness of Despair also. So he addressed the challenge of the urban life, need for the adaptability to avoid the frustration. What are the themes he adopted? रामानुजन की पोएट्री में हम ऑफनली डील करते हैं विद द पर्सनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी को, फैमिली रिलेशनशिप एंड द ट्रेडिशनल वर्सेस को, मॉडर्निटी, कॉम्प्लेक्सिटीज, इंडियन लाइफ, न्यू ओल्ड काइंड ऑफ द थिंग्स एंड द लिविंग स्टाइल और द स्टैंडर्ड ऑफ द मॉडर्न स्टाइल एंड द इंडियन थीम्स ही क्रिएटेड यूनिकली विथ हिज वर्क. नेक्स्ट इज दैट आर Parthasarathi, 1937, presently is alive. So the Rajgopal Parthasarathi is the full name of the R. Parthasarathi, who was born in Tamil Nadu, again the Tirupatturai, and he got the education in the Siddharth College, Mumbai. So when we talk about his contribution, he got the Sahitya अकेडमी अवार्ड, उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, जैसे A.K. रामानुजन को भी मिला था. एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड, A.K. रामानुजन बुक प्राइज फॉर द ट्रांसलेशन भी उन्हें उनका मिला है. पोएट्री प्राइजेस भी उन्हें मिले हैं. पार्थसारथी इज अ पोएट है, ट्रांसलेटर है, क्रिटिक है, एडिटर है, नोन फॉर हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द हिज तमिल हेरिटेज एंड द यूरोपियन. उनके मेजर वर्क कौन से? तो आर पार्थसारथी के पोएट्री के अगर हम बात करें तो पोएट्री फ्रॉम द लीड्स, रफ पैसेज, एडिटर एंथोलॉजीज, 10-20th सेंचुरी इंडियन पोएट. उन्होंने कुछ ट्रांसलेशंस भी किए हैं, द टेल ऑफ द एंकलेट, द इपिक ऑफ द साउथ इंडियन, ट्रांसलेशन ऑफ द 5th century Tamil epic. Then Chilapatchikaram
रफ पैसेजेस अ लॉन्ग पोएम है जो डिवाइडेड 3 सेक्शन पे। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वो वर्क है या किसका है जो लॉन्ग पोएम है और 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो पहला सेक्शन है एग्जाइल, दूसरा है ट्रायल, तीसरा है होम कमिंग। एग्जाइल एक्सप्रेस द पेन एंड आइसोलेशन ऑफ अलाइनेशन। ट्रायल जो सेकंड सेक्शन है वो डिस्कस करता है पर्सनल लव दैट गिव्स द मीनिंग टू द लाइफ। और तीसरा जो है डील विद द डेथ एंड द चेंजिंग प्रोसेस द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। अगर हम अर पार्थ सर की थीम्स और स्टाइल्स की बात करें, उनकी पोएट्री आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्टिवली ऑटोबायोग्राफिकल दिखाई देगी। कंसर्न है उनका अपनी मॉम के साथ, मदर टंग लैंग्वेज के साथ, होमलैंड एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं अपने वर्क में। ओके, सो हियर next see that the G.V. Patel. G.V. Patel, born in Mumbai 1940, and his contribution that G.V. Patel is a poet from the Parsi community, और वो जाने जाते हैं उनके वर्क के लिए विच इज सेंटर ऑन द ह्यूमन बॉडी और द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज मेडिकल प्रोफेशन की का रिफ्लेक्शन उनके वर्क में हमें देखने को मिलेगा। उनके मेजर वर्क की बात करें अगर हम G.V. पटेल की, तो उनका पोएट्री कलेक्शन है पोएम्स 1966 में आया था। हाउ डू यू विथ स्टैंड बॉडी 1976, हाउ डू यू विथ स्टैंड बॉडी। नोटेबल पोएम्स उनकी है द एम्बिग्यूअस फेट ऑफ G.V. पटेल, he being neither Muslim or Hindu in India, reflect on the isolation faced by the Parsi community during the communal rights. Then to be no part of his hate is a deprivation. Planet focus their fire into a worm of destruction, ending along the continent bodies, turn ashamed and shrivel, I only burn my tail. This kind of the lines we can see find in his poetry. Patel's poetry address करती है ऑपरेशन को, marginalization को, basic rights to live as a Parsi community. Okay, he showed in his work. Then we talk about the Arun Kolatkar. Arun Kolatkar very famous according to the exam point of view. Arun Balakrishna Kolatkar, जिनका जन्म कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ है, एंड उनकी नोटेबल वर्क की हम बात करेंगे तो उन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला है, कुसुम गर्ज पुरस्कार भी मिला है, बहनाबाई चौधरी पुरस्कार भी मिला है। एंड उनके मेजर वर्क से मराठी पोएट्री कलेक्शन उन्होंने लिखा है अरुण कोलटकरची कविता 1977, देन चिरीनिरी 2004, देन भिजकी वही दैट जिनके इस भिजकी वही इस वर्क के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिला है 2005 में। that Bhizki Bhai, we call it that the wet notebook, Bhigi notebook. Then Drone 2004, चर कविता इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन, जेजूरी पे क्वेश्चन बनता है। अरुण कोलटकर के वर्क्स की हम बात करें तो जेजूरी पे, देन काला घोड़ा पोएम्स आल्सो 2004। देन सर्प 17 उन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज में मिला है 1977 में। उनकी थीम्स की अगर हम बात करें वो एक्सप्लोर करते हैं रिलीजियस साइट ऑफ जेजूरी इन महाराष्ट्र, अ फेमस डिवोशनल प्लेस, faith and all that. He concluded, Kolatkar poetry is experimental, blending myth, history and the contemporary life. His Marathi poetry also famous, considered the radical influence by the European avant-garde movement जो surrealism की चली थी, like that. Now, A.K. मेहरोत्रा, अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा, इनकी बुक भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं। ही बॉर्न इन लाहौर पाकिस्तान नाउ, वो पोएट है, ट्रांसलेटर है, लिटरेरी क्रिटिक भी है। सो ही अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा डोमिनेंट यूज ऑफ इमेजिनरी एंड एक्सपेरिमेंटल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। उनके पोएट्री कलेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें है बृहत माता A Prayer 1966, Poems 1971 and Middle Earth 1984। उन्होंने ट्रांसलेशन और क्रिटिकल वर्क भी लिखे हैं। वुडकट्स ऑन पेपर 1967, 9 Enclosure 1976 and collected poems in 1969, 2014। A History of Indian Literature in English, इसकी कॉम्प्रहेंसिव बुक हमें रेफर करनी चाहिए, पढ़ लेते, थोड़ी सी कॉस्टली है बट द वेरी इम्पोर्टेंट। यू कैन गेट द ऑल इंडियन लिटरेचर इंफॉर्मेशन थ्रू हिज बुक। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अभी जो एएमपी सेट एग्जाम हुआ था
उस पे देखो बिगिनिंग थ्योरी जो पीटर बैरी की बुक है उस पे क्वेश्चन पूछा गया था. सो आई होप दैट वी शुड नो द ऑल बुक्स एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर. ट्रांसलेटेड ओवर 200 लिटरेरी वर्क्स उन्होंने फ्रॉम द एंशिएंट प्राकृत, हिंदी और बंगाली गुजरात लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया है. थीम्स की अगर हम बात करें तो ए के मेहरोत्रा पोएट्री रिफ्लेक्ट करती है चाइल्डहुड फैंटेसीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड सरेलिज्म अप्रोच. आप लोग को पता होना चाहिए कि एवेंट ग्रेड मूवमेंट क्या था और इससे रिलेटेड ऑथर्स कौन कौन माने जाते हैं. ओके, नेक्स्ट जयंत महापात्रा. जयंत महापात्रा बॉर्न इन कटक, ओडिशा, इंडिया. उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो महापात्रा इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडियन इंग्लिश पोएट रहे हैं वो. और उनके वर्क्स की अगर बात करें वो उन्हें साहित्य एकेडमी भी मिला है, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है पोएट्री के लिए. उनके पोएट्री कलेक्शन है क्लोज द स्काई 10x10 1971 का वर्क है. फादर्स आवर्स 1976, वेटिंग 1979, रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आया है और इसी के लिए उन्हें 1980 में साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है. डिस्पोज nest, burden of waves and fruit, whiteness of bone, then Swayamvara and the other poems, then Reign of the Rites, the False Start, Life Science, Selected Poems, Temple, Themes and Style. तो महापात्रा का ये फेमस बुक है. देन आदिल जुस्सावाला 1940 में ये बॉर्न करते हैं मुंबई में. एक साहित्य एकेडमी विनर ऑथर है. उन्हें 2014 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है. आदिल जुस्सावाला पोएट है, एडिटर है. अक्यूट अवेयरनेस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिज्म उनके मेजर वर्क है. उनकी पोएट्री कलेक्शन लैंड्स एंड 1962 में आता है. ट्राइंग टू से गुड बाय, मिसिंग पर्सन, द राइट काइंड ऑफ अ डॉग. थीम्स की अगर बात करें तो जुस्सावाला की पोएट्री में हमें एग्जाइल, डिसइल्यूजनमेंट एंड ब्लेंडिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्ल्ड की थीम्स दिखाई पड़ती है. देन दिलीप चित्रे बिलिंगुअल ऑथर है. इन्हें कई बार 11-12 के सिलेबस में इंक्लूड किए. इनके पोएम्स इंग्लिश और मराठी में वो लिखते हैं. साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है उन्हें 1994 में. दिलीप चित्रे बिलिंगुअल राइटर है, मराठी एंड इंग्लिश में लिखते हैं. एंड हिज फेमस वर्क की हम बात करें तो कविता मराठी में 1960 में, एकूण कविता is also the Marathi poems. Then the Shesha selected English poems है उनके. Traveling in a Cage भी उनका वर्क है. Then Says Tuka भी क्वेश्चन बन सकता है. Translation of तुकाराम महाराज पोएम, साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर द ट्रांसलेशन उन्हें मिला है. तो चित्रे's poetry often merge the personal narrative and the broader, especially cultural themes he give to us. Okay. Then the Doms Morex, ये भी इंडियन ऑथर है. मुंबई में उनकी बर्थ हो जाती है. उन्हें हथॉर्नडन प्राइज मिला है फॉर अ बिगिनिंग. एंड डॉम मोरेज जो है फर्स्ट इंडियन पोएट टू गेन द इंटरनेशनल रिकग्निशन. ही इज डीपली इन्फ्लुएंस रहे वो डायलन थॉमस से. ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से इंडियन ऑथर है जो डायलन थॉमस से इन्फ्लुएंस है. डायलन थॉमस एंड द सरेलिस्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस है, तो वो है डॉम मोरेज. उनकी पोएट्री की बात करें तो अ बिगिनिंग, पोएम्स, जॉन नोबडी, कलेक्टेड पोएम्स और उनकी ऑटोबायोग्राफी है माय सन्स फादर एंड नेवर एट होम. ये हमें याद रखना है. मोरेस की पोएट्री हमेशा हॉन्टेड वर्ल्ड और मिक्सिंग क्लासिकल, क्रिश्चियन, मेडिवल फेरी टेल्स को रिप्रेजेंट करती है. इसके बाद पी लाल इंपॉर्टेंट ऑथर आते हैं. के एन दारूवाला फेमस ऑथर आते हैं. एंड ओपी भटनागर आल्सो. सो दिस इज हाउ इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द important authors here. And when we talk about the P Lal इनकी बात करते हैं हम, तो उनकी फेमस वर्क है The Portrait, The Patriots, Death and Other Poems, Love's the First, Change They Said, Draupadi and Jayadratha and the Other Poems, The Man of Dharma and the Rasa Silence. फिर उनके ट्रांसलेशन कलकत्ता लॉन्ग पोएम और ट्रांसलेशन भी आते हैं. भगवत गीता का ट्रांसलेशन उन्होंने किया है 1965 में. फिर धम्मपदा 1967 में. गालिब की पोएम्स उन्होंने ट्रांसलेट किया है. कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत 300 फैसिकलिस भी इन्होंने किया है.
फिर हम बात करते हैं केकेएन दारूवाला की। केकेएन दारूवाला, केके नरसवान जी दारूवाला फेमस ऑथर है, उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला है। केकेएन दारूवाला की पोएट्री कलेक्शन में अंडर ओरियन 1970, अप्रिशिएशन इन अप्रैल 1971, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, विंटर पोएम्स, द कीपर ऑफ द डेड, Landscape, Night River, all these works come. We should keenly read the author, birth, death, as well as the work chronology. So this is how you can pause my video, take the notes. These are the very, very important Indian authors. There are a lot of works and may we confuse, but if we read the chronologically and the name of the poetry collection, it's not that much difficult. I thought, okay guys, I hope that you are enjoying my videos. Then like, share and subscribe my channel.